Hello everyone, welcome in mathematics. So in this session we are working or revising the quadrilateral topic in one go. Let us understand the topic completely one by one. What we have done in this particular session is collected all the properties of quadrilateral or maybe whatever are there in this particular topic, as well as some important questions which are there in the exercise. That doesn't mean that only this much if you do is enough. You have to do more than this, rather all the exercises, each and every question of this topic. But few questions which are important I have chosen here. Let's understand the topic. Quadrilateral. Before we start the quadrilateral, we had a very simple concept of curve. Curve is something that you can draw without lifting the pen. It's called as a curve. So if you have to lift the pen, it is not a curve. So this is not a curve because I have to lift the pen to complete this figure. So accordingly, we understood that something is curve or something is not curve. Then we had a very simple concept of closed curve. And you know what is closed curve, but simple closed curve and complex closed curve we need to understand. So simple closed curve and complex closed curve. So in case if the lines intersect, it is a complex. If it won't intersect, it is simple. In a simple language I can say. Polygon, the simple curves which are made up of only straight lines are called as a polygon, right? Next one, fatafat will go ahead. Number of diagonals in terms of polygon, it is n into n minus 3 upon 2. So number of diagonals in the quadrilateral, if I want for quadrilateral, n will be 4. So number of diagonals will be equal to 4 into 4 minus 3 upon 2, which would be 4 into 1 upon 2, it is 2, right? For pentagon means n will be equal to 5, you know that very well. Pentagon, hexagon, heptagon is 7, right? Octagon is 8, nonagon is 9, decagon is 10, right? So for pentagon it will be equal to 5 into 5 minus 3 upon 2. So 5 minus 3 is 2 upon 2 to get cancelled, and the answer is 5. Similarly you can find for anything, right? Then for the polygon interior angles, the sum of interior angles is always equals to n minus 2 into 180. So in case of triangle, n minus 2 matlab n will be 3, side of course, minus 2 into 180. That means 3 minus 2 is 1. 1 minus 1 into 180 is 180. So the sum of angles of a triangle is 180. All angles, this plus this plus this, this plus this plus this is equals to 180. In case of quadrilateral, if I want this 4 angles addition, let us see, it is 4 minus 2 into 180. So 4 minus 2 2 into 180 is 360. So addition is 360. This is how we have done it, right? Next one, regular polygon. What is meant by regular polygon? Whose all sides are equal and all angles are also equal. So both the condition, if it is satisfying, we call it as regular polygon, right? Rhombus is not a regular polygon, even then it has got all sides equal because angles are not equal. Okay? So regular polygon is a unique concept. If all sides are and angles are equal, we call it as regular polygon. So what are the regular polygon? Equilateral triangle is a regular polygon, square is a regular polygon, and then pentagon, regular hexagon, these are also considered as a regular polygons. Sum of exterior angles of any polygon is 360. That means if I have a quadrilateral and if I take all the exterior angles together, this angle plus this angle plus this angle plus this angle, their sum is supposed to be 360. So A, B, C, D addition is 360. If I take any kind of a pentagon, and for here also if I take all the exterior angles, their sum is supposed to be equal to 360 degree. Very very interesting property. Based on this we have sums. So let's see that. The very first thing, quadrilateral addition is 360. So we have x plus 120. I'm talking about very first example, A, 120 plus 130 plus 50, all that is equals to 360 degree. You can easily find x by adding this all three values and shifting the other side. I'm not going to solve everything, I'm just explaining you
or giving you hint. Now if I want x, this angle is 90, surely this angle is supposed to be 90. I hope you understand that. So we have x plus 70 plus 60 plus 90 is going to be equal to 180. Why? Sorry, 360. Sorry. Why is that 90? Linear pair you can say, right? Linear pair, you know, sum is going to be equal to 180 degree, right? We have discussed all these things. See question. I know that this is quadrilateral. So what you can do is, this is x, this is x. So I need remaining. Is this a quadrilateral or pentagon? Pentagon, sorry. This is the pentagon. So I'll first of all find out these angles. So A and B I'll find out. Okay. So A plus 70 is equals to 180 degree, which gives me A is equals to 110, 180 minus 70. B plus 60 is again equals to 180 degree, linear pair. Therefore B is equals to 120 degree. I hope you must have got this part. Now all these are angles of pentagon. So what are the angles of pentagon? Sum of angle sum property of pentagon. So sum of angles of pentagon is it n minus 2 into 180 degree, which would be 5 minus 2 into 180 degree, which will be 3 into 180, and which is going to be 540, and that is nothing but equal to 30 plus x plus A, which is 110, plus B, which is 120. X plus x is 2x. Adding all these remaining and shifting the other side, I get 2x equal to something. X is equals to that number divided by 2. You get your answer, right? Again it is a pentagon. So x plus x plus x plus x plus x is equals to 540, and you get your answer. 5x is equals to 540, and you can easily find out the value of x. फटाफट आगे बढ़ते, we have to go long. Here we have the x plus y plus z. So I hope you understand x plus y plus z is going to be equal to 360 degree. क्यों? क्योंकि these are the exterior angles of a polygon, isn't it? Very simple. And the same thing here as well. X plus y plus z plus w is going to be equal to 360 degree. Directly also you can write the answer stating the property. ठीक है? Here it is the use of the property. So we have 125 x find करना है, तो x plus 125 plus 125 is going to be equal to 360 degree. You can easily find out x by adding these two and shifting the other side. Similarly in the second question we have, this is exterior angle, this is exterior angle, ये 90 होगा, ये 60 है and ये 90 है. तो it's very clear, same thing, angles of exterior angles of a polygon. तो sum will be equal to 360. तो x plus 90 plus 60 plus 90 again plus 70, all that is going to be equal to 360 degree, the property of exterior angles of polygon. Very simple. Find the measurement of each of the exterior angle of a regular polygon of side 9. I know that if there are 9 sides, there will be 9 exterior angle, and all are equal because it is a regular polygon. So 9x is equals to 360 degree. Let x be the exterior angle. And I know that exterior angle का सम जो प्रॉपर्टी है, सम जो है वो होता है कितना, 360. तो x will be equal to कितना हो जाएगा बताओ, 360 डिवाइड बाय 940, राइट. ऑफ साइड 15. तो लेट y be, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकेंड वाला. लेट y be the exterior angle, blah blah blah. So 15y is equals to 360 degree. Two is 24 degree. Y will be equal to 360 divided by 15, 24 degree. Finished. That's it. Third question. How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 224? तो मुझे लगता है 15 अभी भी तो निकाला हमने, एक्सटीरियर एंगल का जो साइड है वो 24 है. तो चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है. इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24, लेट द साइड ऑफ पॉलीगॉन इज x.
और n, वी कैन से n और x. तो 24 इंटू x isn't it will be equal to 360 बिकॉज कितने भी एंगल्स हो उन सबका एडिशन तो 360 ही आता है. ये क्लियर है. तो व्हाट इज x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360 divided by 24 and all that is equals to 15. So number of sides will be equal to 15. How many sides does a regular polygon have if each interior angle is? तो अगर ये ऐसे कुछ तो रेगुलर पॉलीगॉन है जो भी हो, इसका सॉरी ये ऐसे कुछ तो रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसका इंटीरियर एंगल इज 165. तो एक्स्ट्रा एंगल कितना होना चाहिए? पहले एक्स्ट्रा एंगल फाइंड करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है? एक्स्ट्रा एंगल की. एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल्स टू इजंट इट लीनियर पेयर 180 माइनस 165 कितना होगा? ये 15 डिग्री. होप सो. ठीक है ना, 15 डिग्री है, एक्स्ट्रा एंगल 15 डिग्री. सो नाउ इफ एक्स्ट्रा एंगल इज 15 डिग्री तो नंबर ऑफ अभी जैसे हमने ऊपर 24 के लिए किया था वैसे अभी 15 के लिए करते हैं. तो लेट देयर बी x sides. So x into 15 as it is extra angle is equal to 360. ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक्स्ट्रा एंगल के लिए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा एंगल निकाला पहले. समझ में आ गया? तो x will be equal to 24. तो कितने हैं साइड्स? 24 साइड्स हैं. Is it possible to have a regular polygon with measure of exterior angle 22 degree? 22 डिग्री का एक्स्ट्रा एंगल हो सकता है क्योंकि 22 into x is supposed to be equal to 360. It has to be right. तो x will be equal to 360 divided by 22. ये डिविजिबल नहीं है. So it is not divisible. It's not natural number. आप ही बताओ अगर ये ऐसे कुछ डेसिमल में आया, ये साइड ऑफ पॉलीगॉन है ना, एक्स साइड ऑफ पॉलीगॉन, तो अगर डेसिमल में तो नहीं आ सकता. साइड ऑफ पॉलीगॉन 2.5 है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम लोग. साइड ऑफ पॉलीगॉन तो नंबर में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए. तो इट्स नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल. कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? एक्सटीरियर नहीं है तो इंटीरियर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटीरियर एंगल 22 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री. देखते हैं फिर भी, मतलब फॉर रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेम रीज़न, उसका एक्सटीरियर फाइंड करो 22 का एंड देन फाइंड कर दो. ओके, व्हाट इज अ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? मिनिमम इंटीरियर एंगल. तो रेगुलर पॉलीगॉन सबसे छोटा कौन सा है? ट्रायंगल है. तो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. ये तो वेरी सिंपल सी बात है. ठीक है, लेकिन अभी पूछा भी तो है, तो वाई भी पूछा है, तो चलो देखते हैं. मिनिमम इंटीरियर एंगल इज एक्सपेक्टेड, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम साइड लेंगे. पॉसिबल मिनिमम साइड विल बी इक्वल टू 3 क्योंकि ट्रायंगल ही पॉसिबल है, इजंट इट? अभी 3 इंटू द एक्सटीरियर एंगल, 3 इंटू एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. कितना हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 120. अगर एक्सटीरियर एंगल 120 है तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? देयरफॉर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. सो व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल? देखो, जिसका मिनिमम होगा उसी का मैक्सिमम होगा ना, तो वो भी 120 ही आंसर है. मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल क्या होगा? 120 ही होगा. क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग साइड्स बढ़ा देते हैं तो एंगल, एक्सटीरियर एंगल छोटे छोटे होते जाते हैं, एंड साइड्स बढ़ा देते हैं तो इंटीरियर एंगल्स बड़े बड़े होते जाते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? दोनों का आंसर यही है, यहीं पे है. मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल 120 है एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल 60 है. आगे बढ़ते हैं फटाफट. ये है पैरेललोग्राम. तो ये है फैमिली ऑफ अ पैरेललोग्राम वेयर वी आर वर्किंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज. सबसे पहले साइड्स, ये है पैरेललोग्राम. पहला वाला जो है वो पैरेललोग्राम है, तो मैं लिखता हूँ इफ वांट. पैरेललोग्राम के साइड्स कैसे होते हैं?
opposite sides are equal and parallel. Equal and parallel. ठीक है. Then how about its angles? Opposite angles are equal. Angles are equal. And adjacent angles are supplementary. शॉर्ट में लिखता हूँ. देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये और ये भी इक्वल होंगे और ये डॉट एंड क्रॉस विल बी सप्लीमेंट्री. एवरीवेयर डॉट एंड क्रॉस विल बी सप्लीमेंट्री. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दे आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. रेक्टेंगल कैरी फॉरवर्ड दीज प्रॉपर्टीज. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. यहाँ पे होता है ऑल एंगल्स इक्वल. एंड विच इज 90 डिग्री. ऑफकोर्स ये प्रॉपर्टीज भी वो फॉलो करते ही है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. वी कॉल इट एज रेक्टेंगल. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल. ठीक है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. स्क्वायर देखते हैं. स्क्वायर भी क्या होता है? अपोजिट साइड से पैरेलल वो तो कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ऑल साइड्स इक्वल. 90 डिग्री वाला कैरी कर रहा है. ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री. एंड ऑफ कोर्स डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर. दैट मीन्स ये जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल भी होते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं. क्लियर. रोम्बस देखते हैं. ऑल साइड्स इक्वल. एंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता, बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं. जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होते हैं वैसे ही. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, एंगल के लिए पैरेललोग्राम को रेफर करो. एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एंड परपेंडिकुलर इक्वल नहीं होते. तो ये बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे. याद रखो इस टेबल को. टेबल आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी आपके बुक में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्पेशली पैरेललोग्राम के वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. चलो देखते हैं, फटाफट करते हैं. देखो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल के बारे में ना, तो ये और ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री होंगे. जेड कितना आएगा? 80 होगा. मैं बस हिंट दे रहा हूँ. ठीक है, अभी 80 के अपोजिट वाला 80 होगा, 100 के अपोजिट वाला 100 होगा. हो गया, काम खत्म. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री. सेम यू कैन फॉलो हियर इन दिस केस एज वेल. 50 के अपोजिट वाला ये 50 होगा. एडजेसेंट एंगल 130. सप्लीमेंट्री होता है ना एडजेसेंट एंगल. ये भी एडजेसेंट है, ये भी 130 होगा. इसका लीनियर पेयर 130. ठीक है, डन. x 90 होगा क्योंकि ये रोम्बस है. ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल y फाइंड कर सकते हैं आप लोग. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो y प्लस 90 प्लस 30 is going to be equal to 180 degree. Isn't it? These are angles of this triangle. So we get y is equals to 60 degree by adding this and shifting the other side. अभी ये y and z जो है वो अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. यहाँ पे देखते हैं 80 है तो y भी 80 होगा. x कितना हो जाएगा? 100. क्यों? एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स 100. ये 100 है तो z कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर 80. समझना बहुत ज़रूरी है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ. देखो अभी देखो, आगे बढ़ते हैं. ये 112 है तो ये भी कितना होगा? 112. तो इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल वी हैव टू एंगल्स 112 40. कैन यू फाइंड x? यस, x का अल्टरनेट z. काम खत्म. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. ठीक है. मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो मतलब एक 3x होगा,
एक 2x होगा कंसिडरिंग x एज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशो. एडजेसेंट एंगल्स है, देयरफॉर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x विल बी इक्वल टू 180 by 5. 5 3s are 15 and I think 6 are degree, of course degree, right? And then I have to find each angle. तो एक एंगल 3x होगा, एक एंगल 2x होगा. 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 36 एंड 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 36. तो ये दो मिल जाएंगे एंगल मुझे 72 एंड आई थिंक 108. लेकिन आप बोलोगे पैरेललोग्राम के 4 एंगल होते हैं. देख लो 4 एंगल होते हैं, ठीक है ना. एक 72 है, सॉरी, और एक 108 है. इसके अपोजिट इक्वल होता है तो वो भी 108 हो गया, ये 72 हो गया. मतलब वही एंगल्स है बेसिकली. नेक्स्ट वन, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इक्वल मतलब x एंड x. एडजेसेंट है मतलब x प्लस x इज इक्वल टू 180. 2x इज इक्वल टू 180. तो x कितना हो जाएगा 90. तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे 90. दैट्स इट. सेम वही है, अलग से है. क्वेश्चन फिर से है, देख लो. 70 है यहाँ पे, ये 40 है. तो यू कैन फाइंड दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल 40. ये 70 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 110 लीनियर पेयर बराबर. x कितना हो जाएगा 110 क्योंकि अपोजिट एंगल्स. अभी z फाइंड करना है तो 40 प्लस 110 प्लस z इज इक्वल टू 180 क्योंकि ये ट्रायंगल में है. ट्रायंगल को भूलना मत. तो 40 प्लस 110 प्लस z इज इक्वल टू 180. यू कैन फॉलो इट. क्लियर, गेटिंग इट. तो इजीली कर सकते हो. देखो यहाँ पे अभी अपोजिट साइड से इक्वल, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. तो 3y इज इक्वल टू 27. शिफ्टिंग 1 द अदर साइड, y इज इक्वल टू 9 आ गया. x एंड y तो फाइंड करना है मुझे. 3x इज इक्वल टू 18 कर दो एंड यू गेट योर x. यहाँ पर भी वही करना है. देखो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 क्योंकि बाइसेक करते हैं. y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 क्योंकि बाइसेक करते हैं, है ना, इक्वल होते हैं. तो y इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया. y 13 है ऑलरेडी, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16. 13 उधर शिफ्ट हो गया 3. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. समझ में आ गया. देखो सारे क्वेश्चंस हमने फटाफट से कर दिए. ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफिकल्ट में कंसिडर कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज को देख लो. ये भी किया हुआ क्वेश्चन है. ये है मेरा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करो. ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा. एक्स फाइंड करना है, तो मुझे लग रहा है कि इस ट्रायंगल में सारे एंगल्स अगर मिल गए मुझे EOS में, तो आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर डन, राइट. तो हो गया ना. ये पैरेललोग्राम तो दिख रहा है, ये E70 है, ठीक है. तो ये भी तो पैरेललोग्राम है, उसमें आप लोग S फाइंड कर सकते हो. कैसे 120 प्लस S इज इक्वल टू 180. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, तो S एंगल S आ जाएगा 60. तो ये है 70, E है 70, S है 60. तो एक्सपेंड कर सकते हो. 70 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 180. दैट्स इट, दैट्स इट. सो वेरी सिंपल. सो दैट्स इट. हमने क्वाड्रिलेटरल टॉपिक भी ठीक से रिवाइज कर दिया फटाक से एक वन गो में. फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी में और कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर आपको ठीक से नहीं समझ में आया या फिर नहीं आ रहा है, यू कैन प्लीज़ कमेंट इट. आई विल पुट अनदर वीडियो फॉर स्पेशली क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. सो वेटिंग फॉर योर कमेंट, और इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, कमेंट अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो.